Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 16th lecture of this series of CPC. In the previous lecture, I had given a question to solve you. This was the question that you have to solve. Now in this problem, this lady was staying at Howrah with her parents, and the petition was filed by the husband of divorce, and it is filed at Delhi. Earlier, she was staying at Delhi with her husband, but now she left him, so she is staying at Howrah. Now she wants to transfer her suit from Delhi to Howrah. And the grounds are that her parents are ill. दूसरा जो ground है that she has got a child of 6 years, plus he goes to the school, plus she herself is ill, plus there is lack of income. अब इनके इनकम के लिए तो उसने बोल दिया कि मैं खर्चा उठाऊंगा, उसके आने जाने का, स्टे के लिए भी दूंगा, उसके साथ एक जो व्यक्ति आएगा उसका भी दूंगा. So that is not an issue. What will be the answer? Whether a suit will be transferred or not? अब देखो वैसे तो होना चाहिए, बट बर्डन ऑफ प्रूफ के बेसिस पर द आंसर इज नो, द सूट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड. अब क्यों नहीं होगा, आई विल टेल यू. यू सी, यू हैव टू प्रूव द फॉरम कन्वीनियंस, दैट इज द मेन पॉइंट. यू हैव टू प्रूव द फॉरम कन्वीनियंस. अब इसके लिए यू हैव टू प्रूव कि अगर ट्रांसफर कर दो दिल्ली से अगर ट्रांसफर कर दो हावड़ा, तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर डब्ल्यू एंड इट विल नॉट बी एज इनकन्वीनियंट फॉर एच. तो यही तो प्रूव करना है आपको. और अगर दिल्ली में सूट चलाते हो तो फिर इट विल बी टोटली इनकन्वीनियंट फॉर डब्ल्यू. शी विल सफर विद द इररिपेरेबल लॉसेस. So first of all, the burden lies upon her to prove that if the suit is continuing at Delhi, then she will be suffering from irreparable losses. Then उसके बाद she has to prove that if the case is transferred to Howrah, then the husband will not suffer the irreparable losses. लेकिन the first point she has to prove is that if the suit is continued at Delhi, then she will suffering with the irreparable losses. अब उसको irreparable losses prove करना है. So she has to prove the irreparable losses. She says that I am ill. अब illness का कोई evidence दिया उसने? अब she says that my parents are old age. अब old age का तो उसने evidence दिया है. She has given the evidence. But what age? 60. 60 के आसपास age. But 60 is not as old age कि आप अपने आप को संभाल नहीं सकते. अब उसका काम है कि she has to prove that extremely old age. So she has not proved anything. उसका काम है कि वो प्रूव करे कि माई पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली ओल्ड एज, बट शी हैज नॉट प्रूव्ड दैट. कोई सर्टिफिकेट दिया है ओल्ड एज का? इलनेस का कोई एविडेंस दिया? चाइल्ड का एज शी हैज गिवन. स्कूल सर्टिफिकेट में एज भी आ गया. चाइल्ड गोज टू स्कूल, शी हैज गिवन दैट एविडेंस. दैट हर चाइल्ड इज ऑफ 6 years, उसका एविडेंस दिया है उसने. एंड चाइल्ड गोज टू स्कूल, उसका एविडेंस दिया है. पेरेंट्स आर ओल्ड एज, उसका एविडेंस दिया है, बट हाउ ओल्ड she has not proved. So the main ground for irreparable losses is the illness of the parents and the fact that she herself is ill. ये दोनों चीजें. और दोनों मेन जो एविडेंस, मेन फैक्ट हैं जिसके बेसिस पर irreparable losses हो सकता है, उसका एविडेंस उसने नहीं दिया. So she should have given the evidence of the fact that I am ill, of which evidence she has not given. She should have given the evidence of the fact that my parents are ill. That evidence she has not given. Parents are of old age. Old age का सर्टिफिकेट नहीं है, तो we are not presuming that they are extremely old. Old age मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, तो she says मेरे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स उसके 60-65 उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे. Normal in this age the person could have the grandchild. So that would be the consideration. अब नेक्स्ट, द चाइल्ड गोज टू स्कूल्स एंड दैट इज ऑफ 6 years, 6 साल का छोटा बच्चा. तो शी कैन नॉट से दैट चाइल्ड कैन नॉट बी मैनेज विदाउट द मदर व्हेन द नाना नानी इज देयर, बिकॉज नाना नानी कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड फॉर फ्यू डेज गोइंग टू द स्कूल. द चाइल्ड इज नॉट ऑफ 2 years or 3 years. अब एज फार एज हर ओन सोर्स ऑफ इनकम इज कंसर्न, लैक ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, उसका कुछ एविडेंस दिया उसने? नहीं दिया. अगर देती भी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
because husband is ready to bear the expenses. So now you see that she has given the illness wala certificate, then in that case, या फिर child is of 2 year, then in that case the suit has been transferred. But here the application fails on the ground of lack of evidences, because she has not given any evidence of her illness nor the evidence of her parents' illness. A child of 6 years of age can always manage with the help of the nana and nani, normal circumstances में, going to her school for a few days. Nana nani are not extremely ill, as we presume, because she has not proved that they are the extremely ill. तो अगर नाना नानी अगर एक्सट्रीमली इल होती तो उनका ध्यान रखना, प्लस दूसरा उनके द्वारा बच्चे का ध्यान नहीं रखा जा सकता. दैट फैक्ट इफ सी प्रूव, बट दैट फैक्ट शी हैज नॉट प्रूव्ड. अब husband is willing to pay the expenses along with the person who is accompanying with her, so that is sufficient for dismissing the application. अब जिन्होंने एप्लीकेशन ग्रांट किया उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा, तो एप्लीकेशन अलाउ कर दी होगी. इलनेस वाले फैक्टर पर नहीं सोचा होगा, बिकॉज शी हैज़ नॉट प्रूव्ड टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. दैट फर्स्ट बर्डन लाइज अपॉन हर to prove that I will be suffering irreparable losses. So that fact she has not proved. So next जो evidence है, तो next जो burden of proof है कि that he will not suffer irreparable losses if the suit is transferred, तो उसका occasion ही नहीं आएगा, because first of all you prove that I will suffer irreparable losses which she has not proved. तो आंसर आपका इस पैटर्न पर जाएगा, और आंसर में जो की पॉइंट्स होंगे, you will be mentioning section 25, but no need to quote the section, you simply need to mention, और उसमें expedient for the ends of justice, these words you have to quote, and then you have to explain that what is meant by the expedient for the ends of justice. And then the second important point is उसी से related, the concept of forum convenience. So this you have to explain, and then you have to explain, since your entire answer goes on to burden of proof, so you have to explain the burden of proof in the matters of forum convenience. तो इतना लिखने के बाद फिर सीधा आप केस के फैक्ट्स पर पहुंच जाओ, that what she is able to prove and what she is not able to prove. तो आपके आंसर के ये 3 की पॉइंट्स हैं: forum convenience, सेक्शन 25 को मेंशन करना, एंड देन expedient for the ends of justice, and also the third element is burden of proof. Now answer to the applied questions always will contain normally first of all an issue or issues on which you have to decide the question. Secondly, it will be the law point and the explanation of the law point. अब here you have to be very brief. यहाँ पर आप excessively लंबा आंसर नहीं लिख सकते. You have to brief here. You have to write only as much is required in that question. Maybe you will feel like that you will write whole of the section 25, और किसी का मन कर गया हो तो 24 भी लिख देता हो, तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, और 24 का तो रेलिवेंस ही नहीं है यहाँ पर, बिकॉज दैट एप्लीकेशन इज़ नॉट मूव टू द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. और आप जब लॉ पॉइंट आप जब एक्सप्लेन करते हो, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज एग्जाम्स एंड द लॉ फैकल्टी एग्ज़ाम अप्रोच. लॉ एग्ज़ाम में आप नॉर्मली लॉ पॉइंट को आप पूरा लंबा एक्सप्लेन करते हो, जितना भी आप जानते हो उसको सब कुछ लिखते हो. सो दैट इज़ वेयर यू हैव टू कट डाउन अपॉन. फिर उसके बाद सीधा यू हैव टू गो इन टू द प्रेजेंट केस. उसके बाद सीधा यू विल गो टू द प्रेजेंट केस उसके फैक्ट्स के ऊपर. दिस इज़ वेयर यू गेट द मार्क्स. ध्यान रखिएगा, आपको मार्क्स अप्लाइड क्वेश्चन पे, लॉ पॉइंट पर, एक्सप्लेनेशन पर उतना नहीं मिलता, इशू पे भी उतना नहीं मिलेगा. आपको मिलेगा मार्क्स इस पर, प्रेजेंट केस. बिकॉज यू सी दिस इज़ द रेशियो. वेन एवर यू रीड द जजमेंट, जहाँ पर कोर्ट लॉ पॉइंट के बेसिस पर प्रेजेंट केस के फैक्ट्स को अप्लाई करता है, लॉ पॉइंट के बेसिस पे प्रेजेंट केस के फैक्ट को
फैक्ट को अप्लाई करता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो डिसेंडाई ऑफ द केस. एंड इफ यू मिस आउट अपॉन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, देन यू आर नॉट राइटिंग अ गुड आंसर, बिकॉज रेशियो डिसेंडाई के बिना आपका आंसर नहीं हो सकता. एंड रेशियो इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ. रेशियो इज आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ के बाद हाउ विल यू अप्लाई द लॉ upon the facts of the present case. Your judicial thinking, that why you are saying that the application shall not be allowed, क्योंकि लॉ पॉइंट तो चलो रटा हुआ है आपका या समझा हुआ है, तो आपने कॉन्सेप्ट में लिख दिया, बट दिस इज वेयर अ जजेस माइंड अप्लाई. So if you know the law, the how the law applies in the present case, that is where the judge's mind applies, and this is where you get the marks. अब नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं, वी राइट द इशू, और एट टाइम्स वी डू नॉट राइट, वी फोकस अपॉन द मोर अपॉन द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ. और जब प्रेजेंट केस की बात आती है तो उसमें हम छोटा सा पैराग्राफ लिखकर छोड़ देते हैं. सो दैट इज वेयर यू डोंट गेट द मार्क्स. तो इसमें अगर आपको 200-250 वर्ड का लिखना है तो ये पैटर्न होगा, और लास्ट में एक कंक्लूजन होगा. कंक्लूजन मीन्स व्हाट? कंक्लूजन मीन व्हाट? As to what is the answer. So you will write the application is dismissed or application is allowed, whatever, depending upon exactly what is the question. और अब इसी आंसर को अगर 150 या 125 वर्ड्स में ले जाओगे तो आप इशू हटा सकते हो, आप लॉ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन छोटा कर सकते हो, डायरेक्टली आप प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पे एक्सप्लेन करो और उसी में लॉ समझा दो. तो वहाँ पर आपके कुछ पैराग्राफ्स बच जाएंगे, एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स 125 वर्ड्स. और उसमें भी इवन इफ यू हैव टू राइट इनटू द 125 वर्ड, दिस पार्ट शुड नॉट बी मिस्ड आउट, दैट इज द की. सो दैट इज हाउ यू राइट द क्वेश्चन इन एग्जाम. सो इज दैट फाइन? मैं इसमें एक छोटा आंसर देखते हैं, लिखवा रहा हूँ पैटर्न. सो दिस इज अबाउट 200 to 225 वर्ड्स, और फिर लास्ट में उसको और छोटा करने की कोशिश करेंगे. अब देखो, इसमें आपको सेक्शन 19 लिखना है तो लिखो, मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन दैट इज नॉट नेसेसरी. लेकिन वही हमको कट करना है क्योंकि क्वेश्चन छूट जाएगा वरना, बिकॉज जुडिशियरी का एग्जाम इज बेसिकली अबाउट क्या हमको लिखना है और क्या नहीं लिखना है, क्या छोड़ना है. अब देखो इधर क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन इज नॉट वेदर द कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन और नॉट, द क्वेश्चन इज वेदर द सूट शैल बी ट्रांसफर्ड और नॉट. तो जब आपका इशू ज्यूरिडिक्शन पे है ही नहीं, क्योंकि देखो जब भी आप जजमेंट लिखते हो तो सिविल मैटर्स में आप सबसे पहले इशू फ्रेम करते हो, और इशू उसी पॉइंट पर फ्रेम होगा जिस पर कंटेंशन है. वन इज असर्टिंग एंड अनदर इज डिनाइंग, उस पर आप इशू फ्रेम करोगे, एंड द एंटायर ट्रायल एंड द जजमेंट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द इशू. अब इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो ऑब्जेक्शन बाय द लेडी दैट द सूट फाइल्ड इन द दिल्ली इज wrongly filed. So she is not objecting to the jurisdiction, and there is no question as to by the husband that the Havda court does not have jurisdiction. Even if it does not have jurisdiction, it could have been transferred in 25. लेकिन jurisdiction के क्वेश्चन पे यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, so that is not issue. और जो इशू नहीं है तो उस पर आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. So point of contention देखिए आप. Point of contention means the point which is asserted by one party and which is being denied by the other party, or a contention which is raised by a party. तो इशू सिर्फ उस पर फ्रेम होगा और सिर्फ उस पर आपको आंसर लिखना है. तो कोई भी अलाइड पॉइंट पर देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग द आंसर, इवन इफ यू फील lack of writing so many things, but you would not have to write those things. So write down, the main issue to be decided in the present case is as to whether the applicant. अब आंसर में एच और डब्ल्यू करके ऐसे मत लिखना, एप्लीकेंट और रेस्पोंडेंट ऐसे करके लिखना. As to whether the applicant has been able to prove the sufficient cause for a transfer of the suit from Delhi to हावड़ा. ठीक, तो देखो अब इसमें आपने क्या किया, आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, whether the suit shall be transferred from Delhi to हावड़ा, लेकिन आपने एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर दिया, whether she has been able to prove the sufficient cause. और ऐसा लिखने से
you are telling to the examiner the maturity of your answer, your thinking, and you are talking about the burden of proof. और एग्जामिनर को शुरू में ही दिख जाएगा कि आपका फोकस कहाँ जाने वाला है। और अगर आप सिंपली लिखते वेदर सूट शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा, तो देन दैट इज द रेपुटेशन ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन आपने एग्जामिनर को यही बता दिया दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द लेडी and she has to prove the sufficient cause for the transfer. So whether she has been able to prove the sufficient cause or not. So थोड़ा सा issue of framing में there has to be some maturity in your mind and you should have to hit upon the main issue. तो आप burden of proof पे जा रहे हो तो burden of proof पे जाओ। अब बहुत लंबा यहाँ पर नहीं लिखना whether forum convenience is to be proved or not, तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। So you have to write a very short sentence for the issue. तो ये आपका पहला पॉइंट। अब एक से ज़्यादा इश्यूज होते तो आप वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर you only having the one issue whether the burden of proof is fulfilled or not. अब इसके बाद next you have to go on to explain the point of law. तो इसको भी लिखिए। इसमें तीन चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी। 25 बताना था, फॉर्म कन्वीनियंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। Three things you have to explain. So write down the application under section 25 Civil Procedure Code 1908। पूरा लिखोगे। जब भी लॉ लिखते हो आप आंसर में तो पूरा लॉ लिखते हैं विद द ईयर, मतलब फुल फॉर्म, खाली शॉर्ट में सीपीसी नहीं लिखेंगे। अब ब्रैकेट में लिखो हियर इन आफ्टर सीपीसी। अब आगे जब मर्जी आप सीपीसी लिखते रहो। हियर इन आफ्टर कॉल्ड सीपीसी, सीपीसी को इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो। hereinafter CPC bracket closed. So the application under section 25 CPC has to be determined by the Supreme Court on the ground as to whether it is inverted commas में, जो inverted commas में जो word डालते हो वो change नहीं होने चाहिए, वो same to same होने चाहिए। expedient for the ends of justice, expedient for the ends of justice, क्योंकि आप इसको bare act से उठा रहे हो तो इसको inverted commas में डालो। So पूरा सेक्शन आप कभी एग्जाम में मत लिखना, ऑलवेज राइट दैट रेलिवेंट सेक्शन, रेलिवेंट पार्ट ऑफ दैट सेक्शन एंड पुट दैट इन द इन्वर्टेड कॉमास एंड देन यू इंटरप्रेट दैट। अगर पूरा सेक्शन कोई साइट करने के लिए बोले एग्जाम में, नेवर फॉलो दैट, क्योंकि सेक्शन साइट करने में आधा टाइम तो उसी में चला जाता है और फिर उसका पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड प्लस वर्ड्स ऑल्सो ऑन दैट। अब ये वेरी भी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, किस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल नेवर साइट द होल सेक्शन इन दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा एग्जामिनेशन, बट यू मे इन MP, UP। एनीवे लिखो आगे, whether it is expedient for the ends of justice to transfer the suit. Here expedient means necessary, and in order to examine that the court has to examine the doctrine of forum convenience. Forum convenience को भी आप inverted commas में डालिए। That is which is the forum, bracket में डालो court, which is forum of convenience to both the parties, comma, the burden of proving forum convenience in her favor, the burden of proving forum convenience in her favor here lies upon the applicant, full stop. She has first to prove that if the suit continues at Delhi, then she will suffer irreparable losses which cannot be compensated for by money. Thereafter, she has to prove that if the suit is transferred to Havra, here irreparable losses can be avoided and the respondent will not suffer any such irreparable losses. अब देखो इस पूरे आंसर में आपने सेक्शन 25 का रेलिवेंट पोर्शन साइड करना था, वो आपने कर दिया। एक्सपीडियंट का क्या मतलब होता है वो भी आपने बता दिया। अब चाहते तो आप जस्टिस को भी थोड़ा समझाते, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल दैट, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपने फॉरम कन्वीनियंस का जो वर्ड है वो मेंशन किया। फॉरम कन्वीनियंस को आपने छोटे से फ्रेज में समझा दिया, दैट इज़ द कोर्ट ऑफ कन्वीनियंस टू बोथ द पार्टीज।
एंड देन फॉर्म कन्वीनियंस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होगा, दैट ऑल्सो यू हैव रिटन। अब इसके बियॉन्ड थ्योरेटिकली कुछ भी लिखना दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अब इस पर जितना लिखोगे उतना यू आर लूजिंग द वर्ड्स व्हेन यू रियलाइज द प्रेजेंट केस, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से लिखना है द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस। उसको आप जितना जुडिशियल माइंड के साथ लिखोगे द मोर मार्क्स यू गेट। तो फाइन। अब इधर चाहो तो आप एक दो सेंटेंस और ऐड कर सकते हो, बट एज पर मी यहाँ पर यू हैव टू शिफ्टेड अपॉन द प्रेजेंट केस। अब इसमें लिखिए आप नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट इन द प्रेजेंट केस द एप्लीकेंट हैज कंटेंटेड certain facts in support of her application, but mere contentions are not sufficient. Rather, she needs to prove those facts by sufficient evidences. In order to prove her irreparable losses, she has no doubts proved the old age of her parents and also the fact that her child is of 6 years old and goes to school. But she has not proved an extreme old age of the parents to the extent that they are incapable of taking care of the 6-year-old child. Moreover, a 6-year-old child going to school can manage things for a few days in the absence of the mother if the care of maternal grandparents is available. अब देखो यहाँ पर कैसे करना है इसको, एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। जैसे आप सोच रहे हो कि 6 साल का बच्चा अपने नाना नानी के प्रेजेंस में अगर माँ नहीं भी है कुछ दिनों के लिए तो स्कूल जाना और बाकी की चीज़ मैनेज कर सकता है। नाना नानी इज हैविंग लॉट ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स द चाइल्ड अनलेस दे आर टू एक्सट्रीम ऑफ ओल्ड एज, और वो उसने प्रूव किया नहीं है, और अनलेस दे आर टू एक्सट्रीमली इल तो वो भी उसने प्रूव नहीं किया। तो अभी तो जो उसने प्रूव किया उस पर डिस्कस किया है। And now what all other things she has not proved, that is what we have to talk about. अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। अब यहाँ पे मैंने तो गैप करके लिख दिया, बट इट इज नेक्स्ट सेंटेंस, नो नीड टू चेंज द पैराग्राफ, राइट। apart from above she has not proved any of the other alleged facts। अब क्या क्या नहीं प्रूव किया वो आपको लिखना होगा। apart from the above she has not proved any of the other alleged facts। she has not proved her own illness so as to be incapable to travel to Delhi, nor she has proved the illness of her parents so as to incapable in taking care of themselves and her child, nor she has proved a lack of source of income for herself in any case a lack of source of income for herself full stop. In any case, the respondent has already filed an affidavit of his readiness and willingness to bear the traveling and stay expenses for her and a companion. Therefore, lack of source of income otherwise also would not have been a material fact. अब हमने प्रेजेंट केस के जो फैक्ट्स हैं उसको एनालाइज कर लिया। अब थोड़ा आपको कंक्लूजन की तरफ जाना है। सेम पैराग्राफ में आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। Thus, it can be seen that the applicant has failed in her primary burden of proof of proving irreparable losses to herself, and therefore there is no need for any kind of shift of burden of proof। मान लो इसने प्रूव कर दिया होता तो हस्बैंड पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज शी कुड नॉट एबल टू प्रूव द फैक्ट्स, so there is no need
for any kind of shift of burden of proof. ठीक, then full stop. Then next paragraph, accordingly the application shall be dismissed. Accordingly the application shall be dismissed. अब शुरू में क्वेश्चन क्या था, डिसाइड द एप्लीकेशन, तो आंसर भी उसी कॉन्टेक्स्ट में होगा, द एप्लीकेशन शैल बी डिसमिस्ड। अब देख लेना आप इसको कितने वर्ड्स हो गए, और इसमें एंड द ए कंजंक्शन को नहीं जोड़ते तो उसको हटाकर यू विल काउंट द वर्ड्स। वैसे ये जो केस है ये फैक्ट्स तो केस का ही है, निंदिता दास वर्सेस सरजीत दास, लास्ट में इसका नाम लिखवा दूंगा मैं। तो अगर केस याद है आपको तो उसको साइड कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे फॉरम कन्वीनियंस लिखा था तो वहीं पे लिख सकते हो। तो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला जो पॉइंट था तो यहाँ पर लिख सकते हो आप एज हेल्ड इन, फॉरम कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हो एज हेल्ड इन मायर एच के लिमिटेड वर्सेज ओनर्स एंड पार्टीज वेसल्स एमवी फॉर्ट्यून एक्सप्रेस 2006 सुप्रीम कोर्ट। तो इसको बीच में डाल दो, तो केस लॉ को अलग से सजाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें रनिंग में होना चाहिए। तो अलग से केस को सजाने की ज़रूरत नहीं है, केस लॉ रनिंग सेंटेंस में होना चाहिए जैसे आप नॉर्मली आंसर लिखते हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा अंडरलाइन कर दो, वो भी किसी किसी अलाउड स्टेट्स में वो भी अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप स्मॉल आंसर लिख लो इन अनदर फॉर्मेट, लिखो राइट द एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट केस शैल बी डिसमिस्ड। अब यहाँ पे आंसर ही शुरू में लिख दिया आपने, द एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट केस शैल बी डिसमिस्ड, फुल स्टॉप। देन इन नेक्स्ट पैराग्राफ, तो ये अनदर फॉर्मेट में बता रहा हूँ मैं, इन लिमिटेड वर्ड्स, कम वर्ड्स में, इस ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट था उससे कम वर्ड्स में, इन दिस फॉर्मेट द एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट केस शैल बी डिसमिस्ड, द burden of proving forum convenience in her favor, the burden of proving forum convenience in her favor in light of the phrase expedient for the ends of justice under section 25 CPC, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा सिविल प्रोसीजर कोड, और फिर उसके बाद हियर इन आफ्टर कॉल्ड CPC ब्रैकेट में, under section 25 CPC lies upon the applicant, lies upon whom, the applicant, ठीक, which she has not sufficiently been able to prove in the present case, sufficiently able to prove in the present case, in the present case she was required to prove irreparable losses to herself, she was required to prove irreparable losses to herself if the suit continued at Delhi. If the suit continued at Delhi, but accepting the old age of her parents and the age of the child and the school certificate, none of the other alleged facts have been proved. Her illness, the illness of her parents, or lack of source of income have not been proved, or lack of source of income have not been proved। फिर उसके बाद वही सेंटेंस आ जाएगा, ए चाइल्ड ऑफ 6 years of age in the absence of the mother can manage itself for a few days if the care of the maternal grandparents is available. As far as the lack of source of income is concerned, otherwise also it would not have been a material fact in light of the affidavit filed by the respondent, in which he has declared his willingness to bear the travelling and stay expenses. To bear the travelling and stay expenses। ठीक, बस हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, तो इधर से पैराग्राफ चेंज, thus the burden of proof of irreparable losses to applicant not having been proved, there is no need to shift the burden upon the respondent, full stop। The application is dismissed on the ground of lack of evidence, on the lack of
on the ground of lack of evidences। ठीक, तो ये 100 125 वर्ड्स में होगा ये वाला। ये आपका स्टैंडर्ड आंसर है जो डीजीएस पंजाब हरियाणा जो है इस तरीके का एग्ज़ाम देते हो, तो इस तरीके से लिखोगे आप। और इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हो, थोड़ा बहुत एक आध वर्ड्स ऐड या कम कर सकते हो। अब यूपी और बिहार में जहाँ पर बड़े क्वेश्चन है तो वहाँ ज़्यादा लिख सकते हो, जो उसमें फर्स्ट टाइप वाला आंसर लिखोगे उसको थोड़ा सा छोटा करके लिख सकते हो जो फर्स्ट वाला था। और जैसे एमपी वगैरह में टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसमें सेकंड टाइप ऑफ आंसर कर सकते हो छोटे छोटे। सो यू हैव टू सी द नेचर ऑफ द पेपर, so you have to try to improvise upon this। आप इधर चाहते तो केसेस लिख सकते थे वो मायर एच के वाला, और वो मैंने नहीं लिखवाया बिकॉज अगर केस ना भी लिखो, इफ वी आर नॉट फोकसिंग अपॉन राइटिंग ऑफ द केस लॉ देन ऑल्सो इट इज़ ओके, बट नॉट एवरीवेयर। अगर केस है आपको याद है तो लिखो उसको। अब ये जो केस था इसके फैक्ट्स थे, अब इसमें फैक्ट्स थोड़े से ट्विस्टेड हैं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं मिलेगा आपको। तो द नेम ऑफ द केस इज अनंदिता अनिंदिता दास वर्सेस सरजीत दास 2006 सुप्रीम कोर्ट। सरजीत SRIJIT 2006 सुप्रीम कोर्ट, अनिंदिता ANINDITA। अब in this case one more important point the court held was, अब देखो normally what happens was if a wife files an application for transfer of the suit, so normally the Supreme Court has been earlier judgment were there wherein the Supreme Court is tilted in favor of the wife, but in this case it was held that there is no such tilt required and the court should play a neutral role, and it is not always on that of application of wife, not always the application of wife is justified। तो पहले के आपको केसेस वगैरह मिल जाएंगे पुराने वाइफ के फेवर में, यहाँ पर टिल्ट हमेशा वाइफ के फेवर में होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हस्बैंड कहीं जॉब कर रहा है और उसको जॉब छोड़कर छुट्टी लेकर बार बार जाना पड़ेगा तो उसका भी तो लॉस हो सकता है। सो द कोर्ट हैज़ टू प्ले अ न्यूट्रल रोल एंड देन गो बाय अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पार्टीज। और जो हमने अभी आंसर लिखा, अगर उसमें चाहते तो थोड़ा सा और, जब हमने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस की बात करी थी, फॉरम कन्वीनियंस, तो वहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का एक दो सेंटेंस लिख सकते थे, that the interest of the one party and the other party has to be balanced and accordingly the forum convenience has to be determined। तो मतलब इस तरीके के एक दो सेंटेंसेस और ऐड कर सकते थे आप, लेकिन जितना ऐड करोगे उतना लंबा ही होगा आंसर। सो दैट इज ऑल अबाउट द आंसर। अब देखो, बाय दिस योर जुरिडिक्शन पार्ट सेक्शन 9 till 25 is over and section 3 and 6 also we have read with that। अब इसके बाद नेक्स्ट यू हैव टू टॉक अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द सीपीसी, और इसके 3-4 टॉपिक्स हैं आपके पास। एक तो है रेस जूडिकाटा एंड देन वन यू हैव गॉट, जब आप रेस जूडिकाटा पढ़ोगे उसके साथ ऑर्डर 2 रूल 2 भी आप पढ़ोगे, एंड प्लस रेस सब जुडाइस दैट इज सेक्शन 10, एंड देन फॉरेन जजमेंट्स दैट इज सेक्शन 13, 14 एंड 44A। तो ये कुछ आने वाली क्लासेस में we have to read this much। So these are the restrictions in the CPC। So these are topics, some topics. Under the topic restrictions, we would see these topics, restrictions of CPC। So we would have to start with section 11, but that we would start into the next lecture। That's it for this lecture. Thank you।